Hello everyone, my name is Zumama Naeem Khan and I'm here to discuss with you the solutions and have the paper analysis of the slot 2 for class 9th GTSC exam 2020. You all know that I'm your physics faculty, so I'm going to discuss with you the solutions of the physics portion. But before that, I just wanted to ask you, आप लोगों ने GTSC दिया कि नहीं दिया? और दिया है तो अच्छा ही गया होगा, आई एम श्योर. अगर किसी ने नहीं दिया है तो यू स्टिल हैव द चांस, यू कैन अटेम्प्ट इट इन द नेक्स्ट स्लॉट. द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. Let us proceed towards the discussion of the solutions. Okay, on your screen is the first question. A wooden table of mass 100 kilogram is lying on a floor. Okay, supposingly this is our table, it is of 100 kilogram. The drawing is quite poor. No, it is good. Okay. So this is a table, it is lying on this floor and it is of 100 kilogram. Now a man pushes the table with a force of 100 Newton to the right. So here 100 Newton to the right, okay, towards the right it is pushing and another man tends to stop it. If the man tends to stop it, then obviously it will be applying, the person will be applying force in the opposite direction. So that means from this direction the force is 200 Newton. Okay. If the friction force between the floor and the table is 80 Newton, then okay. So first of all, let us see the situation that is being given to us. If 100 Newton is applied from this side and 200 Newton is applied from this side, then we all know that F net will be equal to what? 200 minus 100, that is 100 Newton towards left. Now there is a friction force of 80 Newton. Friction acts in opposite to the direction of motion of the body. So it must be acting on this side, friction, and it is equal to 80 Newton. Now let us subtract 100 minus 80, that gives you 20 Newton. To which side? Towards left. So answer is option number B, the table will move towards left with 20 Newton. Okay, let us proceed. A positively charged body, one sec, okay. A positively charged body is brought near an uncharged gold leaf electroscope. An electroscope looks like this. These are the two leaves and this is the electroscope. Okay. So this is a charged body. A positively charged body is brought near the electroscope, bachcho, and the electroscope originally is uncharged. Okay. So if it is originally uncharged and we will bring this this body close to this plate, then obviously the charge is going to be transferred from the plate to the leaves. So the leaves will also be having which type of charge then? Positive charge. So positive charge will be induced in both the leaves and that is our answer. Okay. Option number B. Okay, coming to the next question. Rahul is observing his image in a plane mirror. So let us make one mirror and let us make one Rahul also. Okay, here is Rahul and the distance between the mirror and his image is 3 meters. So this is Rahul and this is 3 meter and this is Rahul ka image. Okay. If he moves 1 meter towards the mirror, Rahul is going to move 1 meter towards the mirror. So initially, since the image was 3 meters, Rahul must have also been 3 meters away. Now he has moved towards the mirror by 1 meter. So this left distance is 2 meter and his image would have come here and the distance of image will also be 2 meter. Okay. So then the distance between Rahul and his image, can you see that between the mirror and Rahul is 2 meter and between the mirror and his image is 2 meter. So this is the entire distance that is being asked from us, which is 2 plus 2, 4 meter. So answer is A. Okay. Okay, there is another question. 3 holes are at 3 different locations from the bottom of bottle are made in a barrel containing water as shown in figure. Identify the correct options. Okay. If you can see 1, 2 and 3 are 3 holes which are made at different heights. Okay. So we know that pressure in liquid increases when we go down because it depends on the height. कहाँ से लेते हैं? Height from the surface. From the surface you start going down, the pressure is going to increase. So the pressure will be maximum at point number 3. Followed by point number 2, followed by point number 1. So I can write pressure at point 3 is greater than 2 is greater than 1. This much observation I can already make from the question that is given to me. Now let us see the options that are being given to us. Water from any outlet move the same distance. Okay.
See, they're asking about distance. So obviously we need to take this question in terms of speed as well. Bachcho, since the pressure at point 3, the pressure at point 3 is maximum. So just imagine when you are being given the maximum pressure, your speed will be maximum. And if your speed is maximum, you are going to travel the maximum distance. Why? Because speed is equal to distance upon time. So if the distance will be maximum, then also the speed is going to be maximum. These two are directly related. So at point 3, since the pressure is maximum, the water that is going to come out from this hole is going to come out with the huge maximum pressure, with the maximum speed. So the distance that is traveled by the water that is coming from point number 3, hole number 3 is going to be maximum. So option number 3 says water flowing from outlet 3 will move the maximum distance is the answer. Okay. Okay. Next question. A rectangular block of uniform density is placed on a rough horizontal surface in two different orientations as shown in the figure. Okay. Okay, the options, all the options are talking about friction. So let us first have a quick view about friction, bachcho. See, these two floors are having the friction. This is why these lines are being made. So if you will see, the block is same, only the orientation is different. Okay, if I'll see this block like this, so here the bottom is a square and here the bottom must have been a rectangle like this. Okay, like this. Okay. We are not calculating pressure. Pressure depends upon weight and the area of contact, right? We are here being asked about the friction. Friction only and only depends upon, in this case, it depends only upon the weight of the body. But if you can see, beta, हम किसी भी body को ऐसे रखें, ऐसे रखें, ऐसे रखें, उसका वेट चेंज होगा क्या? नहीं होगा. The weight is going to be same, and if the weight is going to be same, the friction that is acting between the surface and the body will also be same. We are not changing the bodies. अगर body change होगी तो nature of surface change होगा, तो friction change होगा. Body क्या है? Same है, सिर्फ orientation बदल रहा है, उससे कुछ भी नहीं बदलेगा. The friction in both the cases will be same. So friction will be equal in both the cases. Answer is C. Okay. Okay, next question on your screen. Okay, there in this figure, if an iron key is needed to be electroplated, then identify solution X from the following. What is electroplating, bachcho? That is deposition of one layer of metal over another metal by passage of electric current. So here this has to be electroplated. This is what they are being saying. This is what they are asking. So on this we'll have to deposit this copper. This is what is being asked to us. Okay, so they are asking that this purple color solution, this should be of what? What should be the purple color solution? Okay. Remember one thing, this is like for every other question also in future that you are going to attempt. Beta, the electrode that we take at the positive terminal, the electrode that is to be deposited over the material जिसके ऊपर हमने उसकी layer बनानी है, ठीक है? तो वो electrode and the electrolyte should be of the same metal. मतलब क्या? यहाँ पे अगर हमने copper लिया है तो solution should be salt of copper. Salt of copper मतलब copper sulfate ले लिया हमने, ठीक है? So here the copper Cu2 plus is going to be deposited over this iron key and this electrolyte CuSO4, it is going to be split. कैसे split होगा बच्चों? Cu2 plus SO4 minus, ऐसी होगा. इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होगा? जब करंट पास करेगा तो हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, इट इज गोइंग टू ब्रेक अप इनटू द रिस्पेक्टिव आयंस एंड देन ओनली द passage of electric current is going to take place. So these ions, the ions that are being formed here should be like the nature of the electrolyte, its electrode itself. So here the solution that we have to take is copper sulfate. That is option number A. So this was all from the physics section. Let us move towards the chemistry portion. Okay. हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स. सो अभी आप लोगों का जीटीएससी का स्लॉट 2 का पेपर होके चुका है एंड आई एम ए केमिस्ट्री टीचर हियर एट गोप्रप एंड माय नेम इज आकांक्षा खंडेलवाल. मैं और आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस है स्लॉट 2 के, उन सबका सॉल्यूशंस. सो आई एम श्योर आप सबका पेपर बहुत ही अमेजिंग रहा होगा बिकॉज द क्वेश्चंस वर प्रीटी सिंपल. सो लेट्स विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स सी व्हाट वर द क्वेश्चंस.
So you can see here the first question was which among the following will not undergo corrosion. बच्चा corrosion आप सबको याद होगा, ज्यादातर प्रॉपर्टी किसकी है, मेटल्स की प्रॉपर्टी है corrosion, right? तो इसमें से ये तीनों ही आपके मेटल्स है सिवाय phosphorus के. So the correct answer for this was option C, only phosphorus, क्योंकि phosphorus is a non-metal. Then you had the next question, which among the three, so आपको x, y, z का पता लगाना है, रिस्पेक्टिवली वर्ड बड़ा जरूरी है. तो x एक ऐसी चीज है जिसे आप इजिली स्टोर नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा पोल्यूटिंग है. तो LPG तो हो नहीं सकती, ठीक है, नेचुरल गैस भी नहीं हो सकती, तो ये तो रूल आउट हो गया. कैन बी स्टोर्ड इन पाइप्स एंड ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइप, कैन बी स्टोर्ड इन टैंक्स एंड ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइप्स. ऑलमोस्ट नो पोल्यूटेंट्स, तो बायोगैस ही पोल्यूटेंट्स निकाल देती है कभी कभी, ठीक है. एंड दिस वन हैज Z इज मॉडरेटली पोल्यूटिंग, राइट? मॉडरेटली मतलब आपका क्या हो गया अगेन, कोल कैन नॉट बी आंसर बिकॉज कोल बहुत ज्यादा पोल्यूटिंग है. सो फॉर दिस द करेक्ट आंसर, यू गेस्ड इट राइट, इट्स ऑप्शन बी, कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम. Okay, the next question was industrialization ने काफी ज्यादा environmental disasters create किए, and this is one case जो हम अक्सर देखते भी हैं रूरल इंडिया में, जहां पर क्या होता है आपके पास काफी सारी women they die because of this problem only, because the houses are not properly ventilated. They are using that चूल्हास, और चूल्हास का कार्बन मोनोऑक्साइड निकालते हैं जो हीमोग्लोबिन से कंबाइन कर देता है, cuts the supply of oxygen in your body, lowers it, जिसकी वजह से they feel suffocated. So for this the correct answer was option B. ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड बच्चा हमेशा याद रखना, इसीलिए हाउसेस शुड बी प्रॉपर्ली वेंटिलेटेड, एंड तभी हमारी गवर्नमेंट इज वर्किंग टुवर्ड्स यूजिंग LPG cylinders and everything. The next was graphite is another allotrope of carbon unlike diamond, मगर graphite एक good conductor है इलेक्ट्रिसिटी का. क्यों? हमेशा याद रखना इलेक्ट्रिसिटी में it's all about ions and electrons. तो यहाँ पे graphite में क्या होता है, आपकी free valence electrons, ऐसे electrons जो move कर सकते हैं, ठीक है, thereby conducting electricity. So the correct answer was option B for this. The next question was polymers are cross-linked हैं, ठीक है, एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग है, एंड दे कैन बी रीयूज्ड. बहुत ही सिंपल है, क्रॉस लिंकिंग वाला हम सबको पता है. थर्मोसेटिंग जैसे बेकलाइट हो गया, मेलामाइन हो गया आपका, इनमें क्या होता है, इनमें आपके इस तरह से क्रॉस लिंकिंग होती है, क्रॉस लिंक्स है इस तरह से आपके, ठीक है, आप देख सकते हो. तो इस क्रॉस लिंकिंग की वजह से क्या होता है, आप इन्हें बार बार यूज कर, दे कैन नॉट, आप इन्हें बार बार यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार अगर ये टूट गए, सो व्हाट, वंस दे आर फॉर्म, दे आर सेट, ठीक है, इसे आप बार बार यूज नहीं कर सकते. सो द थर्मोसेटिंग इज द राइट आंसर फॉर दिस. बेकलाइट हो गया, मेलामाइन हो गया, ये सब आपके हैं. Choose the correct statement from among the following. So इनमें से आप स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ोगे तो पहले स्टेटमेंट, substances which vaporize during burning do not give flames, ऐसा तो नहीं है. पेट्रोल has got very high नहीं, low ignition, तभी तो जल्दी से जल जाता है, ठीक है. The job of fire extinguisher is to cut the supply of oxygen, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड. So the correct answer for this is option C. Okay, it's absolutely correct. आपको I'm sure मैथस्टिक की कहानी सबने ही पढ़ी होगी. The last and very interesting question was there, जिसमें आपको flame test के through color identify करना था. And guys, for this it's asking for a blue-green flame. So sodium जो होता है आपका बच्चा, वो आप लोगों का कलर देता है ज्यादातर golden yellow. It gives you golden yellow color. Whereas जो potassium है वो lilac color देता है. And calcium ions जो है वो brick red color देते हैं. Blue-green देते हैं आपके copper ions. So for this the correct answer was option A. So the questions were pretty simple and I'm sure सबका बहुत ही अच्छा पेपर रहा होगा. अगर अभी तक आप नहीं दिया है पेपर तो बच्चा जल्दी से सब लोग पेपर दे दीजिए, ठीक है. The link has been provided in the description box. Now we will be moving towards the next section. Thank you. Bye bye. Hi everyone, how are you all? और कैसा हुआ GTSC? I hope आप सबका GTSC बहुत अच्छा हुआ होगा. So let us discuss the biology part. So the first question in the biology part was, microbes can increase the fertility of the soil. Which of the following microbe has one such role? There are certain microorganisms which helps to increase the fertility of the soil. Among the following, the rhizobium is the one which increases the fertility of the soil. How it increases the fertility of the soil? This particular microorganism is involved in the fixing of nitrogen, that it helps in the nitrogen fixation.
It is this particular hormone, it is found in the root nodules of the leguminous plant. जो दालें होती हैं उनके रूट नोड्यूल्स में मिलते हैं, एंड दे हेल्प इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब दे कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सच फॉर्म इनटू वेरियस सॉल्ट्स व्हिच प्लांट कैन यूज इनटू वेरियस नाइट्रोजनस सॉल्ट. तो इससे क्या होता है, जो सॉइल होता है उसमें नाइट्रोजन कंटेंट आ जाता है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. The next question is human being, cow, dog, hen, horse, pig. In the list of the animals given above, hen is the odd one out. The reason for this is, ठीक है, it has given that the hen is the odd one out. ऐसा क्यों होता है? You all know that human being, cow, hen, cow, dog, horse, pig, they all are viviparous. That they give birth to young ones directly. ऐसा नहीं है कि first of all they hatch the egg. ठीक है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल दे ले द एग एंड देन दे हैच द एग. दे डायरेक्टली गिव बर्थ टू द यंग वंस. ठीक है, इट मीन्स अमंग द अबव ओनली द hen is the oviparous animal. Oviparous animal means the egg laying animal. It is the only animal which lay the eggs. So the correct answer is B. Next question is, the curd formation in milk depends upon the which of the following reaction. As you all know, the conversion of milk into curd is because of a bacteria known as lactobacillus. It is a bacteria which is responsible for the curdling of the milk. ठीक है? So, this bacteria, what it does, it results in the formation of lactic acid. It undergo the anaerobic respiration and results in the formation of lactic acid. जैसे ही मिल्क में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, मिल्क का पीएच चेंज होता है and which results in the curdling of the milk. So the correct answer is lactic acid fermentation. Next question is, Claire, an environmentalist, claims bacteria can be used to deal with the pollution in oceans. Apparently she is talking about, there are certain microorganisms, for example Alcanivorax. What happened, ठीक है, कोई भी ऑयल टैंक जा रहा है तो ठीक है, क्या होता है ना, उससे ऑयल स्पिल होता है. तो दीज अल्कानिवोरैक्स दे फीड ऑन दैट ऑयल. ठीक है, और उस ओशियन को ऑयल से फ्री करते हैं. सो द क्लैड मस्ट बी अपेरेंटली टॉकिंग अबाउट द ऑयल स्पिल. सो द करेक्ट आंसर इज बी. Next question is, the pair that belongs to the group of the organisms showing 70S ribosome in the cytoplasm is, as you all know, the presence of 70S ribosome is the characteristic of prokaryotic organisms. जो हमारे प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें 70S राइबोसोम होता है. तो इसमें से हमें ये फाइंड करना है कि इसमें से कौन सा प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म है. सो द बी contain a group of prokaryotic organism. Bacteria, as you all know, it is a prokaryotic, and nostoc, which is a blue-green algae. ठीक है, it is also a prokaryotic organism. So the correct option is option C. While yeast is a fungi and amoeba is a protozoa. They both are. If you talk about moss, it is also eukaryotic. Penicillium is a fungi. Spirogyra is a alga. So the correct answer is option C. Moving to the next question. The question is that which of the following statement is not true for organic manure? The options are below. It enhances, yes, it does enhance the water holding capacity of the soil. It is a rich source of all plant nutrients. No. ठीक है, so the correct answer is option B. Organic manure में कोई भी nutrient specific नहीं रहता है, and it is not very, if we compare it with the fertilizer, it doesn't contain all the nutrients. ठीक है, so the correct answer is option B. Next question is, cell wall is important for cell. It prevents the entry of carbon dioxide. So as you all know, assertion is correct, but reason is wrong. Because if you talk about the cell wall, it is freely permeable. It is freely permeable in nature. ठीक है, freely. It means it allow everything to pass through the cell. ठीक है, which means it doesn't prevent the entry of the carbon dioxide. तो ये गलत है. तो option C is correct. That assertion is correct, but the reason is wrong. I hope आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस करेक्ट हुए होंगे. ऑल द बेस्ट. हे दोस्तों, तो प्यारे बच्चों, हम लोग मैथ्स के सेक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं. और मैथ्स के सेक्शन में जो हमारा
पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, द लेंथ ऑफ अ हॉल, अपने हॉल को इमेजिन कर लीजिए, उसकी लेंथ हमें दे रखी है 20 मीटर, विड्थ हमें ब्रेड्थ भी बोल सकते हैं 16 मीटर दे रखी है, और बोला है सम ऑफ एरियाज ऑफ द फ्लोर दैट एंड द फ्लैट रूफ, ऊपर वाले फ्लोर का एरिया और फ्लैट रूफ का एरिया और फ्लैट फ्लोर का एरिया, जमीन का एरिया और रूफ का एरिया इज इक्वल टू, अगर हम इन दोनों का सम लें तो ये इक्वल है 4 वॉल्स के एरिया के इक्वल, जो भी 4 वॉल्स बने हुए हैं, ठीक है, सॉरी माय ड्राइंग के लिए। तो ये कैसे निकालेंगे, तो हमें हाइट यहाँ पे माननी पड़ेगी, लेट h इज द हाइट, ठीक है, हमें यहाँ पर हाइट कंसीडर करनी पड़ेगी, और हम देख सकते हैं जो 4 वॉल्स का एरिया होगा वो होगा 2 टाइम्स L प्लस B इंटू एच, और जो फ्लोर और फ्लैट रूफ का एरिया होगा वो तो इसी से आ जाएगा 20 इंटू 16 प्लस 20 इंटू 16। तो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, तो 2 टाइम्स L प्लस B इंटू एच, और वही 20 इंटू 16 प्लस 20 इंटू 16, ये एरिया है ये एरिया है हमारा फ्लोर का और फ्लैट रूफ का, और ये एरिया है हमारा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे हमें L भी पता है, L है हमारा 20, B है हमारा 16, यहां से हमारा फाइनल H की वैल्यू आ जाएगी, अगर हम ये वैल्यू पुट कर दें तो हमारी वैल्यू आएगी 80/9 मीटर। दिस इज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि एक डाइस को रोल किया है और 3 बार रोल किया है, ठीक है, जब भी हम 3 बार एक डाइस को रोल करते हैं तो 1 1 1 1 1 2, ठीक है, सारे अगर हम इवेंट्स काउंट करें यहाँ पर तो कुल मिला के सारे आउटकम्स काउंट करें तो हमारे 6 इंटू 6 इंटू 6 216 टोटल आउटकम्स आते हैं, ठीक है। पहली लाइन पढ़ के हमने ये वाली बात निकाली, टोटल आउटकम, ठीक है। तो बोला है वेयर द सम ऑफ 3 नंबर्स अपीयर ऑन द अपर मोस्ट फेस इज 15 आर नोटेड, द चांसेस दैट द 4 अपीयर्स ऑन द फर्स्ट टाइम। बोला है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहली डाइस पे क्या आ जाए, हमारा 4 आ जाए, और सम कितना होना चाहिए अपर मोस्ट का, 15 होना चाहिए, ठीक है, मतलब जो सबका सम 15 होना चाहिए। तो हमें वो केसेस देखने पड़ेंगे जिनमें फर्स्ट में तो 4 आ रहा है, फर्स्ट डाइस में तो 4 आ रहा है, और बाकी डाइस में कुछ ऐसा आ रहा है जिससे 15 सम बन रहा है। लाइक हम 6 5 करके यहाँ पे सोच सकते हैं, लाइक हम 5 6 करके हम यहाँ पे सोच सकते हैं, 6 प्लस 4 प्लस 5, ठीक है, क्या समझ में आ रहा है इतना सभी बच्चों को, ठीक है, 6 प्लस 5 प्लस 4। तो और कोई केसेस दिखाई दे रहे हैं, और कोई भी केसेस हमें यहाँ पे 15 सम के लिए नहीं दिखाई देगा, ठीक है, कुछ भी 6 6 आ जाए, 5 5 आ जाए, और कोई केस दिखाई दे रहा है नहीं, तो 2 ही केस पॉसिबल है। तो 2/216 1/108 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि नन ऑफ द अबव है, ठीक है। तो कभी कभी नन ऑफ द अबव करके भी आंसर आ जाता है, हमें इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम आगे बढ़े, बोला है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 2ax, ब्रेड दे रखी है 4ax, पेरीमीटर क्या होता है 2 टाइम्स L प्लस B, किसी भी रेक्टेंगल का भाई पेरीमीटर क्या होता है, तो सबका सम, ठीक है, 2 टाइम्स L मीटर B। बोला रेशियो ऑफ पेरीमीटर टू इट्स एरिया क्या होता है L इंटू B, ठीक है। बस ये वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी है यार, अगर मैं ही पुट कर देता हूँ, चलो 2 टाइम्स इन दोनों का अगर हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6ax, और L इंटू B क्या हो जाएगा 2ax इंटू 4ax, ठीक है। तो 2ax से पहले ये 2ax कैंसिल, और ये आ गया 6/4ax, मतलब ये कैसे 3/2ax, ऐसा एक ऑप्शन है हमारे पास, बिल्कुल है, सी इज द आंसर, ठीक है। तो इजी है ना यार, ये तो आसान था। अब ये वाला क्वेश्चन, ये तो मतलब सिंपल डिवीजन है यार, 8 को 17 से डिवाइड करना है, ठीक है, 8 2 16 होता है हमें पता है, फिर 10 पॉइंट लगाना पड़ेगा, 8 1 8 आ जाएगा हमारा, यहाँ पे कुल 20 आ जाएगा, फिर क्या 8 2 16, फिर 4 0 0.125 आ रहा है ना यार, तो k की वैल्यू तो 125 आ जाएगी, ये आंसर आ जाएगा, तो कुछ मुश्किल है ही नहीं, ठीक है। कितने जल्दी सॉल्व हो रहे हैं यार, विद इन 20 सेकंड सॉल्व हो रहे हैं अगर आप देख पाओ तो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सिलेंड्रिकल टैंक है, उसमें भाई वाटर भर रखा है, चलो बहुत बढ़िया, कितना 20 लीटर पर मिनट, ठीक है, 20 लीटर। पहले तो हमें पर मिनट यहाँ पे दे रखा है, 20 लीटर पर मिनट का क्या है रेट है, ठीक है, और बोला है कि वो टैंक जो है वो फिल हो जाता है हमारा 20 मिनट्स में, टाइम क्या है 20 मिनट्स,
हाइट बतानी है। अच्छा, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस को आर ही लेना है। और वॉल्यूम एक्चुअली यहाँ पे ये क्या दे रखा है हमें, रेट को हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टाइम। तो वॉल्यूम को अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाना चाहिए हमारा, रेट को अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दे तो वॉल्यूम आ जाना चाहिए। लेकिन 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 यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो अब ये लीटर में आएगा और हमें आर मीटर में दे रखा है, तो हमें इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना होगा। 20 लीटर्स को 20 लीटर्स को भी किस में कन्वर्ट करना होगा, हमें मीटर्स में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो हमें पता है 1 लीटर इज 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। तो 20 लीटर की अगर हम बात करें, ठीक है, 20 लीटर की अगर हम बात करें, 20 लीटर भी नहीं, बेसिकली जो वॉल्यूम यहां से आ रहा है वो आ रहा है 20 इंटू 20 लीटर। ठीक है, यही आ रहा है ना, वॉल्यूम बाई टाइम इंटू टाइम, रेट को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें 20 मिनट से, तो 400 लीटर है यहाँ पे। हमें पता है कि 1 लीटर जो होता है हमारा 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब होता है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? तो 400 लीटर हमारा क्या हो जाएगा, 0.4 मीटर क्यूब। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो ये हम 0.4 मीटर क्यूब हो जाएगी 400 लीटर। तो यहां से h क्या आ जाएगा, 0.4 बाय पाई आर स्क्वायर। ऐसा कोई ऑप्शन है? सी ऑप्शन है भाई। पूरा सॉल्व कर रहा हूं मैं, अभी आगे से यार थोड़ा जल्दी हिंट देके करेंगे ना, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अभी आगे से मैं थोड़ा थोड़ा सा हिंट दे दूंगा आपको। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीलर लिस्ट हिज गुड्स 20% अबव, है ना। अब इसमें अगर हम देखें, ऐसे क्वेश्चंस में हम आमतौर पे क्या करते हैं, कुछ कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं अपनी तरफ से, कि कॉस्ट प्राइस मान लिया हमारा क्या है, मान लिया जो कॉस्ट प्राइस है वो है 100 है, तो जो मार्केट प्राइस होगा वो 20% अबव द कॉस्ट ऑफ कॉस्ट प्राइस है, तो वो हो जाएगा 120। अब डिस्काउंट जो है मार्केट प्राइस पे वो 10% है, तो मतलब कितना हो गया, 12 रुपए। तो सेलिंग प्राइस एक्चुअली क्या हो गया, 120 माइनस 12, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 120 माइनस 12। ठीक है भाई, इस पे अगर डिस्काउंट हमें 10% मिला है तो 12 रुपए का डिस्काउंट मिला है ना हमें। ठीक है, तो ये हो गया 108, सेलिंग प्राइस हो गया 108। तो अगर हम गेन देखें, वो आमतौर पे क्या होता है, गेन होता है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, वो हो गया 8 रुपीज। गेन जो हो गया वो हमारा 8 रुपए का हो गया। और गेन परसेंट अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो वो होता है गेन मल्टीप्लाई 100 बाय कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो यहां पर जो गेन है वो है 8 मल्टीप्लाई 100 बाय कॉस्ट प्राइस, हमारा क्या है, 100 ही है, तो 8% विल बी द आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, आसान है ना यार, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, बट थोड़ा हाँ इसमें पहले से पता होना चाहिए। अब ये तो बहुत सिंपल सी बात है, क्या हर होल नंबर, 0 इज अ होल नंबर, वो नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। क्या हर रेशनल नंबर इंटीजर है, 1/2 इज अ रेशनल नंबर, बट वो इंटीजर नहीं है, ये भी गलत है। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, ये सही लग रहा है यार, सारे इंटीजर तो रेशनल नंबर हैं, 2, 3, 4, -3 सब रेशनल नंबर है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, नहीं, -3 है वो नहीं है होल नंबर। ठीक है, पॉजिटिव होते हैं होल नंबर और 0 भी होता है। ठीक है, तो कौन सा आंसर है, सी आया यार, ये तो सबने कर लिया होगा ये तो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंपल कैलकुलेशन है। एक बात को सभी बच्चों को याद रखना है, a की पावर -3 इज 1/a क्यूब। ठीक है, और ये माइनस तो बाहर ही आ जाएगा क्योंकि क्यूब है, तो ये हो जाएगा 1/6 क्यूब, 3 क्यूब पहुंच जाएगा ऊपर, 2 क्यूब भी ऊपर है, 10 टू द पावर -2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इज 6 क्यूब, ये आ जाएगा -1/100 यार। ठीक है, तो ये आई थिंक सभी बच्चों ने यहाँ पे सॉल्व कर लिया होगा, एक्सपोनेंट सभी बच्चों ने पढ़ रखा है। अब ये सिंपल सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, 45/15 इज लाइक 3 - 2x/15 - 4x/5 - 10/5 इज -2, 50। बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, कोई कैलकुलेटिव एरर ना हो यहाँ पे, मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब x वाले, जितने भी x वाले हैं वो एक तरफ कांस्टेंट, एक तरफ ये सॉल्व कर लेना है सभी बच्चों ने। ठीक है, डी आंसर आ जाएगा इसका, ये सॉल्व कर लेना है सभी बच्चों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंपल सॉल्व करने का क्वेश्चन है, a को 1 रख दो और b को 2 रख दो, a को 1 रख दो, b को 2 रख दो हर जगह। ठीक है, यही करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लो। 1 + 4 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 माइनस 1। ठीक है, तो 25 + 3 28 है, नहीं तो सिंपल कैलकुलेशन है, शायद ही किसी बच्चे ने ये वाला क्वेश्चन छोड़ा होगा, सभी ने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन अवर कंप्यूटर स्क्रीन इज, ठीक है, तो एक रेक्टेंगुलर रोड की यहाँ पर बात हुई है, अगर इस क्वेश्चन को सभी बच्चे देख पा रहे हैं तो। ठीक है, तो एक रेक्टेंगुलर रोड है हमारा जो कंस्ट्रक्टेड बिटवीन पॉइंट्स A एंड B।
द ब्रेड्थ ऑफ द रोड इज 4 मीटर। अच्छा, उसकी विड्थ दे रखी है, एक तरीके से ब्रेड्थ दे रखी है, ठीक है, शब्द मुझसे बोला नहीं जाता, अंग्रेजी देख रहे हो आप। इफ एडम्स स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड रीचेस पॉइंट बी इन 2 hours with speed of 40 किलोमीटर पर आवर, द एरिया ऑफ द रोड इज। अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सोचना भी पड़ सकता है। अब अगर आप ये देखो कि लेंथ ऑफ द जो रोड है, अगर हम पहली बात को सोचें, क्या वो डिस्टेंस कवर्ड बाय मुकुल होगा या नहीं होगा? लेंथ ऑफ द रोड मस्ट बी अ डिस्टेंस कवर्ड बाय मुकुल हियर। और स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से सबसे पहली बात जो आ रही है 40 इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम 2 hours, ये हमें दे रखे हैं, सही बात है, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय मुकुल हमारा क्या आ गया, उसे हम बोले 40 into 2, या आ गया 80 किलोमीटर, ठीक है। तो यहां तक मान के चलते हैं कि सभी को आ रहा है, इसे हम 80,000 मीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द रोड अगर हमें निकालना है तो वो क्या हो जाएगा 80,000 into 4, बिकॉज विड्थ क्या है 4 है, ठीक है। एरिया तो यही होता है ना, एरिया क्या होगा डिस्टेंस मल्टीप्लाई जो यहाँ पे ब्रेड्थ है, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ ही तो हो जाएगा ये, मल्टीप्लाई 4। तो 80,000 लिखेंगे, किलोमीटर को हमने मीटर में चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई 4, तो 8 चौक 32, 320,000, ठीक है। तो आई थिंक ये आंसर आना चाहिए, है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे ही है। ये तो यार सिंपल राइट एंगल हमें यहाँ पे दे रखा है कि BD BC के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये तो सिंपल हमें यहाँ पे राइट एंगल बनाकर दे रखा है, तो इसमें तो सिंपल हम भाई कैलकुलेशन से ही हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा पूरा। तो हाइपोटेन्यूज है पहले में 17 और दूसरी लेंथ है 9, AD है 9, तो AD 9 है और BC 8 है। तो पहले BCD ट्राइंगल में अगर आप देखो CD स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब 17, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ना यार, यहाँ पे लिख ही देते हैं। इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, ठीक है। तो 289 माइनस 64 आई थिंक यही हो जाएगा ना, 289 माइनस 64 इज लाइक, अगर कैलकुलेट करो तो 225, 15 रूट आ जाएगा, मतलब BD की जो वैल्यू है वो 15 आ जाएगी, सही बात है कि नहीं है। BD की वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये 15 आ जाएगी, बिकॉज सॉल्व कर लो इसे थोड़ा सा, है ना, 225 का रूट आ जाएगा। अब सोचो एक 15 है एक 9 है, तो अगेन ये हाइपोटेन्यूज है 15, ये क्या हो जाएगा 15 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर बेस, सही बात है, 225 माइनस 81। अब इसको भी थोड़ा सा सभी बच्चे सॉल्व कर लीजिए। 225 माइनस 81, चलो मनी मन करते हैं, 1 हटाया, 224 माइनस 80, 144 का रूट क्या होता है 12, ठीक है, 12 आ जाएगा, ये 12। AB की लेंथ कितनी आ जाएगी 12, ठीक है, ये आ गया AB 12 आ गया, और BD कितना आ गया था 15, ठीक है। अब हमें करना क्या है, क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया निकालना है। अभी ABCD जो है वो 2 ट्राइंगल से मिलके बना हुआ है, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहले इसकी लेंथ इस पे लिख देते हैं, ये हमारी नीचे वाली आई 12, ऊपर वाली आई 15, ये आई 12, ये आई 15, ठीक है। तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ 12 इंटू 9 ये वाला एरिया हो गया, प्लस हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट 8 इंटू 15 ये वाला एरिया हो गया, ठीक है। 6 और 4, 60 प्लस 9 6 54, ठीक है। ऐसा कोई आंसर है हमारा 114 करके, ठीक है। तो C आ रहा है यार, देखो सही है कि नहीं, सही है यार, सही है ना। तो कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका पेरीमीटर तो बहुत सिंपल है। अगर पेरीमीटर A है तो एक साइड की लेंथ हो जाएगी A/3 A/3 A/3। पेरीमीटर क्या होता है, सभी लेंथ का सम, तो A/3 प्लस A/3 प्लस A/3 करेंगे तो A ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से साइड लेंथ आ गई हमारी। एरिया क्या होता है किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का, √3/4 साइड का स्क्वायर, जहां तक मुझे याद है, ठीक है। वो फॉर्मूले भाई याद थोड़ी कम रहते हैं ना, तभी देखो बोले सर तब आप मैथ्स के टीचर बन गए, हाँ यार क्या करें, ठीक है। ये आ गया, तो आ गया √3a² 4 इंटू 9, 36 आना चाहिए ना, या D ऑप्शन सामने सामने आ रहा है, D ऑप्शन यार, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें PAQ ये एंगल दे रखा है 120 डिग्री, और O हमें सेंटर दे रखा है, तो हमें ये वाला एंगल बताना है। आप कहोगे सर POQ में हमें यही क्यों बताना है। सोचो जब एंगल हमसे कुछ पूछा जाता है ABC, तो हम ये रिफ्लेक्स एंगल को नहीं सोचते, हम हमेशा इसी एंगल को सोचते हैं कि हमें ये बताना है, ठीक है। तो हमें अंदर वाला एंगल बताना है, ठीक है।
तो अभी पहले तो एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये रूल आप पढ़ोगे कि किसी भी ट्राइंगल में एक कॉर्ड द्वारा जो एंगल हमारा सबटेंड किया जाता है सरकमफ्रेंस पे, उससे डबल एंगल हमारा सेंटर पे सबटेंड होता है। अगर ये थीटा है तो ये क्या होता है 2 थीटा है। तो अगर ये 120 है तो ये वाला जो एंगल होगा ये होगा 120 इंटू 2 मतलब 240 डिग्री। तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, ये एक पॉइंट के अराउंड पूरा एंगल 360 होता है, 360 डिग्री माइनस 240 डिग्री। तो आप इसे बोलोगे 120 डिग्री। ऐसा कोई ऑप्शन है यार, आंसर है कि नहीं है यार? मैं डर गया था आंसर आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो पक्का समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेचुरल नंबर ऑड, यार मैं इसके लिए आपको एक फंडा बताता हूँ। आप सोचो तीन ऑड नंबर का सम क्या है? 4 + 5 9 मतलब 3 स्क्वायर। 4 एक और नेचुरल ऑड नंबर ले लो तो इसका सम क्या है 16 मतलब 4 स्क्वायर। मतलब अगर n ऑड नंबर्स होंगे नेचुरल नंबर लगातार 1 से लेकर तो उनका सम होगा n स्क्वायर। तो 10 ऑड नंबर का सम क्या होगा 10 स्क्वायर मतलब 100। ठीक है, या आप ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हो, बाकी आप 10th में AP पढ़ते हो उससे इसका प्रूफ आता है। ठीक है, चलो C इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है A जो है वो B से दुगने टाइम में काम कर सकता है। ठीक है, दुगना वर्क करता है। ठीक है, मतलब अगर हम ऐसा बोले कि B किसी काम को X घंटे में करता है, ठीक है, तो A उस काम को 2X घंटे में करता है, ऐसा बोल सकते हैं। बोला है B अकेला उस काम को कितने घंटे में कर सकता है। तो कोई काम है वो उसे 12 आवर्स में करते हैं। ठीक है, तो कोई हमारा काम है वो उस काम को कितने आवर्स में करते हैं 12 आवर्स में करते हैं। तो B अकेला उस काम को कितनी देर में, ऐसे क्वेश्चन कर रखे हैं आपने। तो पहले तो A और B दोनों का 1 घंटे का काम कितना होगा? दोनों का A एंड B बोथ 1 आवर वर्क। ठीक है, पार्डन माई इंग्लिश। ठीक है, दोनों का 1 घंटे का काम होगा 1/12। पूरा काम 12 घंटे में हो रहा है तो 1 घंटे का काम होगा 1/12। ठीक है ना? इतना समझ में आ रहा है क्या कि सभी बच्चों को? ठीक है, अच्छा हम ये जो हमने काम माना हुआ है हम इसे 1 घंटे का काम मान लेते हैं। ठीक है, हम ऐसा मान लेते हैं वर्क डन बाय B in 1 hour is X। तो वर्क डन बाय B in 1 hour is 2X। इसे आवर नहीं मानते। ठीक है, तो यहां से हमारा ना ये हो जाएगा X + 2X is 1/12 हो जाएगा। ये थोड़ा आसान मेथड पड़ेगा। तो 3X हमारा 1/12 हो जाएगा। यहाँ से X आ जाएगा हमारा 1/36। तो X एक्चुअली क्या था B के 1 घंटे का काम है ना, उस काम का क्या है 1/36। तो B को कितने घंटे लगेंगे 36 घंटे लगेंगे यार। ठीक है, B को उस काम को अकेले करने में कितने, 1 घंटे में उसका 1/36 पार्ट करता है। तो पूरा काम कब करेगा 36 घंटे में। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा लंबा किया है बेसिक से समझाने के चक्कर में, अदरवाइज इसके बहुत शॉर्टकट और आसान से मेथड है। ठीक है, इतनी टेंशन ही नहीं लेनी पड़ती यार। हाँ, तो ये क्वेश्चन पूरा कैलकुलेटिव है, ये मेरे को नहीं बताना आपको, ये तो आप खुद कर लोगे यार। पूरा पैरामीटर दे रखा है, मतलब यू कैन से AB + BC + CA की वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखी है 6p²। ये मेरे को नहीं बताना यार, आप खुद कर लोगे। एक कोई साइड लेंथ दे रखी है, ये वाली साइड AB मान ली दे दी, ये दे दी। पैरामीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। ठीक है, तो 2 साइड अगर हमें दे रखी है AB दे रखी है AC दे रखी है तो आप BC यहाँ से निकाल लोगे। ठीक है, P की फॉर्म में। ये मेरे को बिल्कुल नहीं बताना, ये हर बच्चा यहाँ पे बैठा बच्चा कर लेगा। सिर्फ पुट करके कैलकुलेशन करनी है, वो भी प्लस माइनस, नथिंग एल्स। अब इस वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या लेंथ दे रखी है, ब्रेड्थ। अच्छा, रेशियो जब भी दे रखा हो तो हम 4x और 3x की फॉर्म में मान लेते हैं ना यार, ऐसे मान लेते हैं। डायगोनल्स की लेंथ दे रखी है कितना 25 डायगोनल की लेंथ दे रखी है। बोला पैरामीटर बताओ रेक्टेंगल का। तो यहाँ तो पाइथागोरस लग जाएगी, 3x का स्क्वायर + 4x का स्क्वायर = 24 का स्क्वायर। पाइथागोरस लग जाएगी ना, ये राइट एंगल होता है रेक्टेंगल में। तो ये x² तो कॉमन आ गया, 3² + 4² जो कि क्या होता है 25। तो एक तो कट ही गया ना 25। तो x² 25 आ गया, मतलब x आ गया ±5, मतलब +5 ही लेंगे या -5 क्यों लेंगे, 5 आ गई x की वैल्यू 5 आ गई। तो लेंथ आ गई 4 × 5 20 और ब्रेड्थ आ गई 3 × 5 is 15। ठीक है, तो 15 + 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया पूरा पैरामीटर। तो ये कितना आ गया 35 × 2 70। ठीक है, ज़्यादा तेज हो रहा हो तो बोल देना यार, थोड़ा स्लो करके देख लेना, यूट्यूब पे है। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखने में अच्छा लग रहा है भाई, थोड़ा बड़ा सा भी लग रहा है ना, थोड़ा इसका फिगर भी बड़ा बना लेता हूँ मैं। एक है भाई हमारा सर्किल, उसमें बोला है रेडियस है उसकी कुछ, चलो ठीक है 17 सेंटीमीटर रेडियस, और दो पैरेलल कॉर्ड है। पैरेलल कॉर्ड पहले ड्रॉ कर लेते हैं। मान लिया दो पैरेलल कॉर्ड है, ठीक है, अपोजिट सेंटर के अपोजिट साइड में, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड इज, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये हमें 23 सेंटीमीटर दे रखी है। चलो बहुत बढ़िया। और क्या बोल रखा है कि अगर एक की लेंथ 16 सेंटीमीटर, मान लिया यही 16 सेंटीमीटर का है यही लेंथ, तो सोचो ये ना कॉर्ड को बाइसेक्ट करते हैं, अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो अगर ये पूरा 16 है तो ये कितना हो जाएगा 8। ये बात सही है ना। और ये लेंथ रेडियस हमें सर्किल की पता है, रेडियस कितनी पता है 17, ठीक है। हमें दूसरे की लेंथ बतानी है, मतलब अगर आधी लेंथ भी पता लगी तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके, इसे मैं x मान लेता हूँ, तो पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी 2x निकालना है मुझे। चलो करते हैं। तो ये 17 है, ये 8 है। अभी ऐसा क्वेश्चन किया था हमने, ये हाइपोटेन्यूज है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 स्क्वायर 289 माइनस 64। अभी किया था हमने 225, ये 15 आ जाएगी ये लेंथ। अगर ये पूरा 23 है और ये 15 है, तो ये लेंथ कितनी होगी 23 माइनस 15, ठीक है 8, ये 8 होगी। अगेन रेडियस 17 है, ये 17 है, ये 8 है, तो ये 15 हो जाएगी। x 15 है तो 2x कितना हो जाएगा 30, ठीक है। दिस इज सच अ गुड क्वेश्चन, दिस इज सच अ ग्रेट क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आया, ये बहुत ही प्योर और अच्छी मैथमेटिक्स है। ध्यान से समझना, अपने आप करना है आपने। ये हिंट है मेरी तरफ से, ऐसा समझ लेना। अगर समझ में नहीं आया तो खुद से ट्राई करना है जी। अच्छा, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। इसको अपने इस तरह के क्वेश्चन जरूर किए होंगे सभी बच्चों ने, कि हम कौन सा स्क्वायर रूट यहाँ पे कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि परफेक्ट स्क्वायर हो। तो लॉन्ग डिवीजन इसमें काम आता है, 8th क्लास का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम दो दो के पेयर बनाते हैं, 7 × 7 49 ऐसे करके लिख दिया हमने। आता है ना ये निकालना। फिर अगर हम सब्ट्रैक्ट करें 56 में से 45 तो 7 आएगा। तो 707 अगर हम यहाँ पर देखें तो ये आ गया 7, ऊपर से आ गया 0 7, 7 + 7 14, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, हम इसके पास का नंबर देखते हैं जिससे मल्टीप्लाई करते हैं ना। 144 × 4 हमें लिखना पड़ेगा। अगर हम उसे कैलकुलेट करें, आई थिंक वो आ जाएगा -576, माइनस करते हैं इसे। तो 576 अगर सब्ट्रैक्ट करो तो 131। अगर ये 131 रिमाइंडर है, अगर ये नहीं आता तो ये क्या होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर होता। तो इस नंबर में से 131 क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ठीक है ना यार। तो सी इज द आंसर। सो दिस इज अवर मैथ्स पेपर, दिस इज मी गौरव शर्मा, है ना। और हम आगे नेक्स्ट पेपर्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सो दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं अपने एप्टीट्यूड वाले सेक्शन की तरफ। तो हमारा एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में जो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि भाई कोडेड लैंग्वेज है, कोड। शोल्डर वर्ड को इस वर्ड से लिख सकते हैं, भाई इसको पढ़ भी नहीं सकते अपन, मतलब मैं नहीं पढ़ पा रहा। बॉक्सिंग को हम ऐसे लिख सकते हैं, और साइफ, ओके। तो हॉर्न को कैसे लिख सकेंगे, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें, एस के कॉरस्पॉन्डिंग टी है यहाँ पर, ठीक है। और ओ के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम देखें एस है, तो इसमें भी ओ के कॉरस्पॉन्डिंग एस है। तो ये सिंपल लेटर टू लेटर है, मतलब ऐसे समझ सकते हैं लेटर टू लेटर है। तो एच के कॉरस्पॉन्डिंग जे है, अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर भी एच के कॉरस्पॉन्डिंग जे आ जाएगा। ओ के कॉरस्पॉन्डिंग हमने ऑब्वियसली देखा था एस है। तो आर के कॉरस्पॉन्डिंग लास्ट वर्ड है, यहाँ पे लास्ट वर्ड क्या है, जेड है, जेड है। एन के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर देखो, एन का सेकंड लास्ट वर्ड है, पी आ जाएगा, ठीक है ना। तो जे एस जेड पी ऐसा कोई वर्ड है, डी इज द आंसर। अरे ए इज द आंसर, जे एस जेड पी, ओके जेड पी है यार, ए इज द आंसर, ठीक है। देख लो पहले क्वेश्चन में ही भाई तुम्हारा बोला सही था मैंने, लेकिन यहाँ पर देख रहे हो यार, ठीक है। तो हो जाता है कभी कभी ऐसा, कभी कभी हम ऑप्शन भी ऐसे मार्क कर देते हैं। एज अ स्टूडेंट जब मैंने भी पेपर दिए तो कहीं जल्दीबाजी में ऐसे, तो उसका ध्यान रखना है, ठीक है। मेरी गलती से आपने सीखना है, मैंने सॉल्व सही किया है फिर भी ऑप्शन गलत मार्क कर रहा था मैं, है ना, ये सीखना है आपने, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे है कि हमारी घड़ी में 8 से 9 बजे के बीच में हैंड्स ऑफ अ क्लॉक किस टाइम पे जो हमारी घड़ी की सुइयां हैं वो साथ में होंगी, ठीक है। ये रहा हमारा 9 बजे का टाइम, और ये रहा हमारा 8 बजे का टाइम, 7 बजे का टाइम, 6 बजे का टाइम, ठीक है। एक बार घड़ी बना देते हैं। देखिए घड़ी में हर मिनट में, हर 5 मिनट में आपको पता है कितने एंगल्स होते हैं, ठीक है। 9 10 11 12। मेरे को एक वो याद भी आ रहा है कि ये हमारा, सॉरी ये हमारी लाफिंग पोजीशन होती है,
ठीक है, तो ये सब नहीं याद करना। अब ये बताओ कि कितने हर 5 मिनट में कितना एंगल होता है, अगर आप देखो तो या हर मिनट में कितना एंगल होता है। द रिलेटिव स्पीड ऑफ अ मिनट एंड आवर एंड, अगर आप देखो तो 5.5 डिग्री होता है, आप इसे निकाल सकते हो, ठीक है, 5.5 डिग्री होता है। और घंटे और मिनट की सुई में 8 बजे 240 डिग्री हो रहा होगा, ठीक है, 8 बजे 240 डिग्री होगा, ठीक है। तो इस बात को याद रखना है, रिलेटिव स्पीड ऑफ मिनट एंड आवर एंड, ठीक है। रिलेटिव स्पीड का मतलब इन दोनों के बीच का जो एंगल हमेशा चलता रहता है, ठीक है ना, तो वो कितना होता है 5.5 डिग्री होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखा, रिलेटिव स्पीड ऑफ मिनट एंड आवर एंड इज 5.5 डिग्री। अब 8 बजे एग्जैक्टली देखो, 8 बजे मतलब ये है हमारा पूरा ये फोर्थ पार्ट है 3, ठीक है, पूरा एंगल कितना होता है 360, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल अगर है, अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये 240 हो गया है ना, ये पूरा एंगल हमारा कितना हो जाएगा 240 डिग्री। तो 240 डिग्री, अब इसको डिवाइड करोगे आप किससे 5.5 से, 5.5 से डिवाइड करोगे, आई थिंक ये आ जाना चाहिए 43 7/11 है ना, ऐसा ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, जिसने पहले से कर रखे होंगे इस तरह के क्वेश्चंस वो ही इसे समझ पाएगा, ठीक है। जिसने पहले से, मैं पूरा एक एक करके ये डराइव नहीं कर सकता, अभी टाइम की कमी है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, इस सीक्वेंस में अगला क्या आएगा, इस सीक्वेंस में अगला क्या आएगा। अब अगर आप इसे ध्यान से देखें, इस डोमिनो, विच डोमिनो है ना, ये सभी लोगों ने डाइस खेला होगा ये वाला, ठीक है। सो इसे इंग्लिश में बोलता हूं मैं टोटली, ठीक है। इफ वी कंसीडर द फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ डोमिनोज, अगर पहला, तीसरा और पांचवा डोमिनो आप देखो, मतलब डाइस आप देखो, तो वी कैन सी दैट द टॉप नंबर इज डिक्रीजिंग बाय 1, जो टॉप पे है वो 1 से डिक्रीज हो रहा है, एंड इंग्लिश हिंदी दोनों बोल रहे हैं भाई हम, एंड द बॉटम इज इंक्रीजिंग बाय 1, जो बॉटम है वो 1 से इंक्रीज हो रहा है। और सेकंड एंड फोर्थ में भी सिमिलर प्रोग्रेशन है, ठीक है। फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ में जो प्रोग्रेशन है वही सेकंड और फोर्थ में है विद द नंबर्स, ठीक है। कि टॉप वाला जो है वो तो डिक्रीज हो रहा है 1 से, और जो बॉटम वाला है वो इंक्रीज हो रहा है 1 से। तो जो छठा डोमिनो होगा वो ए वाली फिगर को फॉलो करेगा, ठीक है। आई थिंक ए आंसर आएगा, जो छठा वाला होगा, ठीक है। फर्स्ट, थर्ड और इसमें देखो है ना 6 5 4 2 3 4 1 2 6 5, तो इसमें क्या हो रहा है, अब क्या होना चाहिए 2 के बाद, यहाँ पे 3 होना चाहिए और नीचे कितना होना चाहिए 4, ठीक है ना भाई, यही होना चाहिए ना, नीचे यही होना चाहिए, नीचे वाला हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ए इज द आंसर, ए इज द आंसर, 3 ऊपर 4 नीचे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये क्या बोल रहा है भाई, इसको इंग्लिश में बोलते रहते हैं कि 12 दर्जन एप्पल हैं, ठीक है, 12 दर्जन एप्पल हैं, बहुत बढ़िया। 2 दर्जन फिर से डाल दिए, 2 दर्जन फिर से डाल दिए, 14 दर्जन हो गए। 10 एप्पल्स गॉट स्पॉइल्ड, मतलब दर्जन का मतलब क्या होता है 14 × 12, ठीक है, 12 चौक 48, 12 एकम 168, तो उसमें से क्या है 10 एप्पल हो गए थे तो 158 बचे। 10 एप्पल जो स्पॉइल्ड हो गए उसे हटा दिया, तो 158 को 2 इक्वल बास्केट में डाल दिया, तो 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, 2 7 79, हर बार बास्केट में 7। बस ये सॉल्व करते रहना है यार, ये तो क्या क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन की इंग्लिश पढ़ के हिंदी में सॉल्व करते रहना, मतलब आप इंग्लिश में भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन आवर कंप्यूटर स्क्रीन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे हमें जो दिखाई दे रहा है, एक रो है बॉयज की, ठीक है, एक को बना लेते हैं लेफ्ट, एक को बना लेते हैं लेफ्ट हमारा, एक को बना लेते हैं राइट, ठीक है। जो ए की पोजीशन है वो यहाँ से क्या है 20th है, बी की पोजीशन जो राइट से वो क्या है 16th है। ओके ग्रेट, अब ए और बी को इंटरचेंज कर दिया, मतलब ए आ गया यहाँ पर। अगर ए और बी को इंटरचेंज हमने कर दिया तो इसका मतलब है ए अब राइट से 16th पोजीशन पे और बी और राइट से क्या है 20th पोजीशन पे। बोले नाउ ए जो है वो लेफ्ट से कितनी पोजीशन पे 30th पोजीशन पे, ठीक है। तो कितने बच्चे हैं कुल मिला के, अच्छा ए अगर 30th पोजीशन पे है तो हम 30 + 16 करें, उसमें ए 2 बार काउंट हो गया तो एक बार ए को सब्ट्रैक्ट करें, इतने कुल मिला के बच्चे होंगे, यहाँ से 16, यहाँ से 30, बट इससे पहले 29 होंगे तो 1 माइनस कर दिया,
तो 30 + 15 आई थिंक 45 बच्चे इसका आंसर होगा। इस 20 का कोई काम नहीं है ना, इस 20 का कोई काम नहीं है। कितना सही है यार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन आवर कंप्यूटर स्क्रीन इज, अब ये फिर से अंग्रेजी वाला क्वेश्चन लग रहा है, ये होते नहीं है मुश्किल, ये बस दिखते हैं कि 60 लीटर ऑफ मिल्क है। चलो 12 लीटर हमने क्या किया, मिल्क बाहर टेकन आउट ऑफ इट एंड रिप्लेस बाय वाटर। अच्छा बाहर निकाला यार, 12 लीटर बाहर निकाल दिया और 12 लीटर पानी डाल दिया, मतलब 48 लीटर मिल्क है और 12 लीटर हमारा वाटर है। फिर हमने क्या किया, इसमें से देन अगेन फ्रॉम द मिक्सचर 12 लीटर्स आर टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय वाटर। ठीक है, उस मिक्सचर में से हमने 12 लीटर फिर से निकाल लिया, मिक्सचर निकाला है, अब याद रखना, और जो वापस डाला है हमने 12 लीटर वाटर डाला है वापस। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट आफ्टर द ऑपरेशन, इसमें अमाउंट ऑफ मिल्क कितना बचा लास्ट में। पहले क्वेश्चन की अंग्रेजी को समझ लेना है, पहले क्वेश्चन की अंग्रेजी को समझ लिया, ठीक है, फिर आगे काम किया। तो अगर इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझे हम, जब हमने 12 लीटर बाहर निकाला और उसे वाटर से रिप्लेस किया तो 48:12 यहाँ पर है, मतलब वी कैन से 48:12 वी कैन से 4:1 में है। 4 मिल्क का है और 1 वाटर का है। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना होगा ये सब हमें। ठीक है, मतलब व्हाट वी कैन से 4:1 होता है, तो 4/5 पार्ट इज मिल्क एंड 1/5 पार्ट इज वाटर। ठीक है, 12 लीटर की जो क्वांटिटी होगी मिल्क की, ठीक है, जो हमने 12 लीटर निकाला, ठीक है, तो 48/5 लीटर वो होगा। ठीक है ना, मतलब इसमें वी कैन से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यार इसे, 4/5 पार्ट है ना। फिर हमने मिक्सचर में से 12 लीटर जो निकाला, जो हमने बाहर निकाला है 12 लीटर उस मिक्सचर में से, वो क्या है, तो मिल्क का कितना पार्ट बाहर गया। ठीक है, इतना मिल्क का पार्ट बाहर गया, सही बात है, इतना मिल्क का पार्ट बाहर गया। हिंदी में लिख रहा हूं भाई मैं, देख रहे हो आप, समझने वाली बात, इस ऑपरेशन के बाद है ना, इतना मिल्क का पार्ट बाहर गया, क्योंकि 4/5 पार्ट वाटर है, 1/5 पार्ट मिल्क है। तो अगर आप इसे सॉल्व करो तो जाएगा 48/5 लीटर मिल्क बाहर गया। तो मिल्क रिमेनिंग, मिल्क लेफ्ट कितना हुआ, मिल्क बचा कितना, तो मिल्क पहले कितना था, 48 लीटर मिल्क था पहले, उसमें से कितना मिल्क बाहर गया, 48/5 मिल्क बाहर गया। तो यार ये तो कैलकुलेशन है, 48 × 5 - 48/5, ठीक है, तो 48 × 4, ठीक है। तो यार ये वाली कैलकुलेशन मत कराओ यार, कुल मिला के आई थिंक 38.4 आ जाना चाहिए, जहां तक मेरे को आंसर ही याद है यार इसका। तो इसको सॉल्व कर लेना, यही आ जाएगा, ठीक है, होपफुली जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब यार ये सब बच्चे अपने आप करेंगे, ये मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है। P का मतलब प्लस, Q का मतलब माइनस, R का मतलब मल्टीप्लाई, S का मतलब डिवाइड, ठीक है, तो डाल देंगे ना यार, जहाँ पे R है उसकी जगह मल्टीप्लाई डाल देंगे, जहाँ पे S है उसकी जगह डिवाइड डाल देंगे, जहाँ पे Q है वहाँ पे माइनस डाल देंगे, जहाँ पे P है वहाँ पे प्लस डाल देंगे, ठीक है ना, यही तो करना है। और देखेंगे कि किस ऑपरेशन से आंसर आ रहा है, तो ये लास्ट वाले ऑपरेशन से आंसर आ रहा है, ठीक है ना, ये मैं नहीं सॉल्व करूंगा, या आपने सॉल्व करना है। सिंपल कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, सिंपल कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको तो मैं अब आंसर सॉल्व करके दिखाता हूं, हमें हर ऑप्शन सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, 8 × 8 64 प्लस बॉड मास लगाएंगे ना, वो याद है, बदमाश नो नहीं, ब्रैकेट ओपन, डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। फिर प्लस आएगा, पहले मल्टीप्लाई होगा फिर प्लस आएगा, प्लस में P हो गया, फिर 8/8, पहले डिवीजन होगा, ठीक है, फिर ये क्या माइनस, फिर सब्ट्रैक्शन बाद में होगा 8, ठीक है, तो ये हो गया 1 है ना। तो 64 - 8 इज 56 प्लस 1 इज 57, ये सही आ रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन आवर कंप्यूटर स्क्रीन इज, अब अगेन इस तरह का क्वेश्चन मैथ्स में भी आया था, अगर आपको याद हो, कि P और Q किसी काम को मान लिया P एंड Q किसी काम को 10 दिन में कर पाते हैं, ठीक है। वैसे इस तरह के क्वेश्चन के लिए बहुत सारे शॉर्टकट्स बने हुए हैं, बट 9th क्लास में हम इसे लॉन्ग कट से करेंगे, ठीक है। वहां पर भी हमने लॉन्ग कट से ही किया था। Q एंड R किसी काम को 15 डेज में करते हैं, R एंड P किसी काम को 20 डेज में करते हैं, तो R अकेला उस काम को कितनी दिन में कर लेगा, ठीक है।
तो यार अगर मैं बोलूं कि P और Q का एक दिन का काम कितना है ना, ऐसे ही करके करते हैं ना इस तरह के क्वेश्चन को, अगर आपने कभी किया हो तो, है ना। वी कैन से कि द 1/10 ऑफ वर्क कैन बी डन व्हेन दे वर्क टुगेदर, मतलब वो 10 दिन में अगर काम पूरा करते हैं तो 1/10 ऑफ वर्क कितने में होगा, मतलब 1 डे वर्क ऑफ P इज 1P 1/P, 1 डे वर्क ऑफ Q इज 1/Q, ठीक है। तो जब वो साथ में काम करते हैं तो वो 1/P प्लस 1/Q मस्ट बी इक्वल टू 1/10, ठीक है। P जो है किसी, है ना, P के एक दिन का काम हमने 1/P हो गया, और Q के एक दिन का काम हमने 1/Q ले लिया, 1/Q वर्क ऑफ 1 डे, ठीक है। सिमिलरली 1/Q प्लस 1/R हमारा आ जाएगा 1/15, सिमिलरली 1/R प्लस 1/P आ जाएगा 1/20। अब इन तीनों को ना ऐड कर दो, इन तीनों को ऐड करोगे तो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा ना, 1/P प्लस 1/Q प्लस 1/R, ठीक है यार। ये कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक है ना, थोड़ी सी। और ये 2 इधर डिवाइड में ले आओ यार, ये 2 कहाँ ले आओ, इधर डिवाइड में ले आओ, ठीक है। तो अब हमें निकालना क्या है, हमें R के बताना है, R अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो 1/P प्लस 1/Q की वैल्यू तो हमें पता है 1/10, यहाँ से डाल दो वैल्यू 1/10, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई 10 ये वैल्यू डाल दो तो 1/R आ जाएगा, ठीक है। तो 1/R की मान लिया जो भी वैल्यू आती है, मैं बता देता हूँ कितनी आएगी। 1/R की अगर आप देखोगे यहाँ से वैल्यू आएगी 1/120 आएगी, कुछ ऐसे सॉल्व करके। तो R अकेला उस काम को 120 डेज में सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए यार अभी इसके इजी तरीके भी होते हैं और बड़े फंडामेंटल से भी ये क्वेश्चन होते हैं, पर अभी मैं आपको सिर्फ आंसर एक्सप्लेन कर सकता हूँ, है ना, यही कर सकता हूँ मैं तो अभी। अच्छा, ये इससे आसान क्वेश्चन नहीं होगा आई थिंक पूरा। A को 3x मान लेंगे, इससे आसान क्वेश्चन आपने नहीं देखा होगा पूरे एप्टीट्यूड में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो 3x 5x 7x, भाई x मान लिया सबको, b की जगह क्या आ गया 5x, तो x तो कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस 5 प्लस 7 8 7 15/5, मतलब 3 आंसर आ जाएगा। इससे आसान नहीं होगा यार कोई क्वेश्चन जी। कुछ भी मान लो, आप बोलो सर x क्यों माना, कुछ मान लो, r मान लो, p मान लो, a 3r b 5r c 7r यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। सिंपल मोस्ट क्वेश्चन है। ओके, हाउ मेनी टाइम्स द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये थोड़ा लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। अब हमें पता है जो हैंड्स ऑफ अ क्लॉक दे मतलब वो कोइंसाइड करते हैं ओनली वंस बिटवीन 11 एंड 1, ठीक है। 12 बजे कोइंसाइड करते हैं अगर आप देखो, ठीक है। तो हर 12 घंटे में वो हम अगर देखें तो 11 बार कोइंसाइड करेंगे, मतलब हर 24 घंटे में वो हमारे 11 प्लस 11 बार कोइंसाइड करेंगे, ठीक है ना। हर 24 घंटे में वो 11 प्लस 11 बार कोइंसाइड करेंगे, ठीक है। तो हम बोलेंगे 22 बार वो कोइंसाइड करेंगे, ठीक है ना। एक ही बार मिलते हैं ना 11 से 1 के बीच में, ठीक है। तो हर 55 मिनट में आई थिंक वो मतलब 65 मिनट्स में हर वो मिलते हैं, ना कि 60 मिनट्स में मिलते हैं, हर 65 मिनट्स में मिलते हैं। तो 12 घंटे में वो 11 बार मिलेंगे और 24 घंटे में वो 22 बार मिलेंगे, ठीक है। इसे आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो इस वाली बात को। मैथमेटिक्स थोड़ी लंबी है इसकी, है ना, बी आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा एप्टीट्यूड का सेक्शन है। बाकी आप हमारी ऐप के साथ जुड़े रहिए, आपकी कोई भी क्वेरी है आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वंडरफुल टाइम टू मी, थैंक यू।